ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین اور اہم ترین پروگرام DNA میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں کہ آج DNA میں کیا تفصیلات آنے والی ہیں۔ کورونا پازیٹیو صحافی نے ایمز کی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مذہبی بے حرمتی معاملے میں 5 ڈیرہ حامی 14 دن کی عدالتی حراست میں لیے گئے۔ نئی میڈیا پالیسی سے ناراض صحافیوں کا احتجاج، کہا ہماری آواز ہی نہیں گلا ہی گھونٹ دے۔ مستقبل میں کووڈ-19 نوٹ بندی اور GST کی ناکامی اسٹڈی میں ہوں گی شامل، راہل گاندھی کا بیان۔ کورونا وائرس بارات میں شامل دلہا دلہن سمیت 6 رشتے متاثر۔ وینٹی لیٹر کی خریداری میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، کانگریس کا الزام۔ بنگلہ دیش میں سیلاب کے سبب صورتحال تشویشناک ہو گئی۔ شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی دلہن، تبھی نوجوان نے بیوٹی پارلر میں گھس گیا۔ وکاس دوبے کی تلاش میں پولیس سرگرم، نیپال سے منسلک سرحد پر ہائی الرٹ۔ نائجیریا مسافر بردار کشتی دریا برد، 21 افراد ہوئے ہلاک۔ عراق حساس علاقے پر 2 راکٹ حملوں کی اطلاع۔ امریکہ میں 2 طیاروں کے آپس میں ٹکر، سوار سبھی افراد ہلاک۔ انتہا پسند یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی ایک بار پھر بے حرمتی کی۔ کورونا ختم نہیں ہوا، چین میں نئی وبائی بیماری پھیلنے کا خطرہ، الرٹ جاری۔ لیبیا بارودی سرنگیں صاف کرنے والے 2 کارکن بم پھٹنے سے لقمہ اجل۔ برطانیہ میں امن پر حملہ کرنے والے ممالک کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ ملک میں کی گئی سرمایہ کاری آئندہ نسلوں کے لیے میراث بنے گی، ایردوغان کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین اور اہم ترین پروگرام DNA میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت DNA پروگرام میں عالم اسلام، خلیجی ممالک، ایشین ممالک سمیت ہندوستان کے کئی اہم ترین علاقوں سے کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، تنقیدیں ہوئے ہیں، ویڈیوز دکھائے گئے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے جا کر کے دیکھ لیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ ادارے کو مضبوط کریں۔ ناظرین آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں کورونا مریضوں کی خودکشی کی خبریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق ایک کورونا پازیٹیو صحافی نے دہلی واقع ایمز ٹراما سینٹر کی 4تھی منزل سے مبینہ طور پر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ان کی حالت نازک ہے اور ایمز کے ICU میں ان کا علاج چل رہا ہے، لیکن خبر رساں ادارہ UNI کی اطلاع کے مطابق ICU میں انہیں داخل کیے جانے کے بعد ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا تھا۔ ایک ہندی نیوز پورٹل opindia.com پر حادثے کے تعلق سے ایک تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صحافی کا تعلق دینک بھاسکر سے ہے اور وہ کورونا پازیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ کینسر کے مرض سے بھی جنگ لڑ رہا تھا۔ صحافی کا نام ترون سسودیا بتایا جاتا ہے اور شائع رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کچھ دنوں پہلے دینک بھاسکر انتظامیہ نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ ادارے سے منسلک ہو گئے تھے۔ ناظرین پنجاب میں سن 2015 کے مذہبی بے حرمتی کے ایک معاملے میں ہفتے کے روز گرفتار ہونے والے 5 ڈیرہ سچا سودا کے حامیوں کو آج 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ خصوصی جانچ ٹیم نے انہیں ہفتے کے روز گرفتار کیا تھا اور عدالت میں انہیں 2 دن کی پولیس حراست میں بھیجا تھا۔ آج پولیس کی حراست کی مدت ختم ہونے پر سبھی کو جوڈیشل مجسٹریٹ یکتا اپل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پانچوں کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیجنے کا حکم دیا۔ خصوصی جانچ ٹیم نے ہفتے کے روز ڈیرہ کے 7 حامیوں کو گرفتار کیا تھا، لیکن عدالت نے 2 کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا کیونکہ انہیں موہالی کی عدالت سے ضمانت مل چکی تھی۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کے صحافیوں کی۔ جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں پیر کے روز صحافیوں کے گروپ نے حکومت کی نئی میڈیا پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر کی صبح صحافیوں کے گروپ نے یہاں جموں کشمیر میڈیا گلڈ کے بینر تلے مشتاق پریس انکلیو میں جمع ہو کر مذکورہ میڈیا پالیسی، جس کو حال ہی میں نافذ کیا گیا ہے، کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجی صحافی سرکار کی میڈیا پالیسی منظور نہیں، میڈیا پالیسی کو واپس لو، سینسرشپ کو ختم کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ احتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر میڈیا پالیسی کے خلاف نعرے درج تھے۔
नाज़रीन, हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हालात लगातार बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्क में हर रोज़ औसतन 20,000 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 24,248 नए मामले सामने आए, जबकि 425 लोगों की इस वायरस से जान चली गई है। हिंदुस्तान अब रूस को पीछे छोड़कर कोरोना के इन्फेक्शन के मामले में सरफ़हरिस्त 3 ममालिक में पहुँच गया है। मुल्क में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लगातार हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने पीर के रोज़ पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट करके मरकज़ी हुकूमत पर हमला किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मुस्तकबिल में जब नाकामी पर कोई स्टडी यानी तहकीक होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी अपनी वीडियो के कैप्शन में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी निफास का तस्करा किया। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में नाकामी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ट्वीट के साथ साथ राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने मुल्क को खिताब करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा। वीडियो में दिखाया गया कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान कोरोना वायरस की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। नाज़रीन, आइए हरियाणा की खबर सुनाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हरियाणा के करनाल में भी कोरोना इन्फेक्शन के 15 नए केस रिपोर्ट हुए। दरअसल गुज़िश्ता माह 29 जून को करनाल के एक 5 स्टार होटल में शादी हुई थी, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शादी में शरीक हुए थे। अब खुद दुल्हा दुल्हन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुल्हा दुल्हन के 6 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी भी कुछ रिश्तेदारों का कोरोना टेस्ट होना बाकी है। असल तादाद उसी वक्त पता चल सकती है जब सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। वाज़ेह है कि इसके कबल करनाल के एक निजी अस्पताल में कोरोना मुस्बत मरीज़ पहुंचा था, जिसके सबब वहां का अमला और डॉक्टर भी मुस्बत हो गए। और अब यह मामला एक शादी का है, जिसके सबब कोरोना केसेस में इजाफा होने की बात की जा रही है। लिहाजा शादी में शिरकत करने से लोगों को बचना चाहिए। नाज़रीन, कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने वेंटिलेटर की ख़रीदारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है और कोरोना वबा के दौर में मुल्क के अवाम के साथ धोखा किया है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 6,73,000 से ज़्यादा हो चुकी। वबा का कहर इतना ज़्यादा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड तादाद में इस बीमारी से लोगों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद 20,000 के करीब हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड्स में पैसा डाला और 31 मार्च को 40,000 वेंटिलेटर की ख़रीदारी का हुकूमत ने आर्डर दिया, लेकिन इसे अब बताना चाहिए कि क्या इस फंड से ये वेंटिलेटर ख़रीदे गए। तर्जुमान ने भी कहा कि हुकूमत जब भी बड़ी ख़रीदारी करती है तो उसके लिए खुला टेंडर तलब किया जाता है। मुल्क के आवाम को बताया जाना चाहिए कि क्या इन वेंटिलेटरों की ख़रीदारी के लिए टेंडर तलब किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुल्क में 1.5 लाख में वेंटिलेटर ख़रीदा जा सकता है तो हुकूमत ने 4 लाख रुपये देकर ये क्यों ख़रीदा। दूसरी बात, डॉक्टरों और सरकारी डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि वेंटिलेटर इस्तेमाल के लायक ही नहीं हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश में इतवार को तेस्ता नदी की सतह आब में इजाफा होने के सबब सैलाब मुतासिर शिमाली और वस्ती इलाके में सूरत हाल मज़ीद होलनाक हो गई है। गुज़िश्ता 15 दिनों में नदी की आबी सतह तीसरी बार ख़तरे के निशान के ऊपर आ गई। धरला और जमुना नदी में सतह आब बढ़ने के सबब बांग्लादेश के गिरिग्राम, गायबंधा और जमालपुर समेत ज़्यादातर इलाके गुज़िश्ता 8 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। पद्मा नदी की सतह आब भी ख़तरे के निशान से ऊपर है, जिसके सबब कई मरकज़ी अज़ला की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बांग्लादेश के वाटर डेवलपमेंट बोर्ड WDB के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राइबो इस्लाम ने कहा कि सैलाब के सबब 59,000 मुतासिर हुए हैं। WDB के शिमाली खित्ते के सरबराह ज्योति प्रसाद घोष ने कहा कि जुमा और हफ्ते के दरमियान 250 एकड़ ज़मीन तेस्ता नदी में डूब गई, जिसके सबब 117 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन, कानपुर में पुलिस सर्कल अफसर समेत 8 पुलिस एहलकार के कत्ल का कलीदी मुलजिम विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवास्ती, बहराइच, लखीमपुर खेर और पीलीभीत अजला की मुल्क नेपाल से मुंसलिक 550 किलोमीटर लंबी बैनुल-अक़वामी सरहद पर हाई अलर्ट जारी करते हुए चौकसी बढ़ा दी है। सरकारी ज़राए ने पीर को यहाँ बताया कि विकास दुबे गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल फ़रार हो सकता है, जिसके पेश नज़र इन अजला में विकास दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं और पुलिस जगह जगह तलाशी ले रही है। सभी मकामी थानों को विकास दुबे की फ़ोटो भी दस्तयाब कराई गई है। ज़राए ने बताया कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद के लिए तैनात मुसल्लह बॉर्डर फ़ौज को भी मुस्तैद कर दिया गया है। सरहद पर लगातार गश्त जारी है। नाज़रीन, नाइजीरिया के जुनूब में मुसाफिर कश्ती डूबने के नतीजे में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक सूबे बेनू की दरियाए बेनू में मुसाफिर बरदार कश्ती इजाफी बोझ की वजह से डूब गई। हादसे में 21 अफराद हलाक और कसीर तादाद में लापता हो गए हैं। बेनू पुलिस तर्जुमान कैथरीन एनएन के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को बचा लिया गया। एनए के मुताबिक इलाके में इमदादी काम अभी भी जारी है।
नाज़रीन, इराक़ी दारुलहुकूमत के इंतहाई हसास इलाके ग्रीन जोन में वाक़ अमरीकी सिफारती और अस्करी तनसीबात पर 2 राकेट दागे जाने की इत्तलात हैं। अलबत्ता इराक़ी फ़ौज ने आज कहा है कि कोई राकेट हमला नहीं हुआ है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सिफारतखाने के करीब एक राकेट हमले की तस्दीक की गई थी। इसी तरह एक और राकेट बगदाद के हवाई अड्डे के करीब ताजी फ़ौजी अड्डे के करीब गिरा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता अक्टूबर से अब तक इराक़ में अमरीकी सिफारतकारों फ़ौजियों को निशाना बनाकर तकरीबन 3 दर्जन मिसाइल हमले किए जा चुके हैं। अमरीका इन हमलों की ज़िम्मेदारी ईरान नवाज़ मुसल्लह ग्रुपों पर आयद करता है। नाज़रीन, अमरीका के एडाहो रियासत में कोयरा डी लीन झील के ऊपर 2 जहाज़ों की टक्कर के बाद उनके डूब जाने से 8 लोगों की हलाकत का खदशा है। कोटेनाई काउंटी शेरफ दफ्तर की जानिब से जारी रिलीज़ के मुताबिक वाक़या इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक 2:20 पर पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जाए वाक़या से अब तक 2 लोगों की लाशें बरामद हो चुकी हैं और 6 बालिग और बच्चे लापता हैं। लापता लोगों की मौत की शबह का इजहार किया जा रहा है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जहाज़ों में करवा अराकीन समेत मजमूई तौर पर 8 अफराद सवार थे। इसकी तस्दीक अभी भी की जा रही है। अभी तक ये माना जा रहा है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। नाज़रीन, इसराइली पुलिस की हमराही में भारी तादाद में इंतहा पसंद यहूदियों ने मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स के कदीम शहर में वाक़ क़िबला अव्वल के सहन पर धावा बोल दिया है। अल-कुद्स इस्लामी औक़ाफ़ का कहना है कि इसराइली पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होने वाले 70 इंतहा पसंद यहूदियों ने मस्जिद अक़सा के जुनूबी मग़रिब में वाक़ अल-मग़रिब दरवाज़े से क़ब्ल क़िबला अव्वल में दाखिल होते हुए बेहुरमती की है। ख्याल रहे कि कट्टर यहूदी गाहे बगाहे इस किस्म की नाज़िबा हरकत के मुर्तकिब यहाँ पर होते ही रहते हैं। नाज़रीन, लीबिया की गैरकानूनी मुसल्लह क़ुव्वतों की जानिब से दारुल-हुकूमत तराबलस के जुनूबी इलाक़े में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ़ करने की कोशिश करने वाले 2 माहिरीन बम फटने से हलाक हो गए हैं। ख्याल रहे कि हफ्तर के मलेशियाओं की जानिब से तराबलस की जुनूबी रिहायशी इलाक़ों से इनक़ला के वक्त वहाँ पर भारी तादाद में बारूदी सुरंगों और दस्ती बमों को ज़मीन में दबाने का तयन हुआ था। अब तक इन सुरंगों के फटने से बच्चों और ख़वातीन समेत 39 अफराद लुक़्मे अजल जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। दरियासना तराबलस की लीबिया पार्लियामेंट से मुंसलिक इंसानी हकूक़ व आज़ादी कमीशन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के मशरिक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के दफ्तर के सदर डयाना अला तहावी से इंटरनेट के ज़रिए एक इजलास मुनक़िद किया है। नाज़रीन, बरतानवी दारुलहुकूमत लंदन में यमन पर हमलों के जवाज़ में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और उन ममालिक को असलहा फ़रोख्त करने वाली यूरोपीय यूनियन ममालिक और बरतानिया के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया है। BBC के दफ्तर के सामने होने वाले मुज़ाहिरीन के बाद मुज़ाहिरीन ने वज़ारत उज़्मा की इमारत की जानिब जुलूस निकाला। यमनी परचमों के हमरा हमलों को रोको, यमन के लिए इंसाफ तहरीरों पर मबनी कार्ड्स उठाने वाले मुज़ाहिरीन ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तुर्की की। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुल्क में की जाने वाली सरमायाकारी आइंदा की नस्लों के लिए मीरास साबित होगी। सदर ने ट्विटर पर वज़ारत तवानाई और कुदरती वसाइल की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ एक नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर स्टेशन से मुताल्लिक़ उमूर आगाज़ के बारे में तफसीलात दी हैं। उन्होंने कहा कि 11.3 अरब तुर्क लीरे की सरमायाकारी के तहत 26 शहरों में 52 अदद हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर स्टेशन के क़याम के नतीजे में 10,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। उन्होंने भी कहा कि सरमायाकारी इस बात का सबूत है कि मौजूदा सूरत हाल में बाकी दुनिया सरमायाकारी की तलाश में सुस्त रवि का शिकार है, मगर तुर्की वबा के बरखिलाफ़ इन कोशिशों और मौक़ों के तसलसल को जारी रखे हुए है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन आलम भर की ख़बरें जो DNA में आप लोगों के सामने पेश की गई। यहाँ पर मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।